you, Father. We worship you, Father. We worship you, Lord. You are Waymaker. You are Miracle God. Jesus. You are here, Father. You are here, Lord. We worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Lord Jesus, I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Yes, Jesus, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who That is who you are. You are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Worship you.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are, Jesus. That is who you are. Hallelujah. That is who you are. 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 You are. You are. Jesus. Thank you, Father. Jesus. Thank you, Father. Oh, Jesus. You're holy. You are holy. You are waymaker. You are miracle worker. You are promise keeper. You are light in the darkness. You are the Lord Almighty. You are the only one God. Jesus, I worship you, Lord Jesus. Yes, Father. Yes, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Father, thank you for this nice word that you have given us, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you. I submit each and every one into your loving name, Lord Jesus. I submit this worship to you, Lord Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Jesus. Amen. जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, आजा बीबी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा बीबी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश
होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है। महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा बेटा छोटू, जो हमारा भतीजा है, वो अभी लॉकडाउन के समय पूना में फंस गया था। वहाँ जॉब करता है, बहुत 1-1.5 साल से कर रहा है, लेकिन वो घर नहीं आ पाया और पूना में फंस गया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इतने दिनों तक उसको वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से संभाला, और जो उसके मालिक थे उनके हृदय को परमेश्वर ने इतनी दया से भरा कि उन्होंने अपने बेटे के समान उसे रखा। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। जब हम सब लोग परेशान हो रहे थे कि वो कैसे यहाँ पे आएगा इतनी दूर से, तो उसी समय परमेश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। हम भी और हमारे साथ जो भाई हैं, जो हमारे चर्च के भैया हैं, उनके साथ, बंटी भैया के साथ मिलकर हम सभी जन प्रार्थना कर रहे थे। और प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने लॉकडाउन के समय, जबकि सबको आना असंभव था, उस समय परमेश्वर ने इस असंभव को संभव कर दिखाया। और प्रभु यीशु राजा उसे खुद के वाहन से, परमेश्वर पिता उस मालिक के हृदय को ऐसा किया कि वो स्वयं के वाहन से उसे अपने घर तक छोड़ गए, थोड़ी दूर तक छोड़ गए। और वहाँ से हमारे भाई और भतीजे बड़े वाला लेने गए, और पता चला कि उन लोग को भी थोड़ी गाड़ी से लग गई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि बड़ी दुर्घटना से बचाकर प्रभु ने उन लोगों को भी संभाला, और तीनों को 12-1 बजे रात को अकेले आए और सुरक्षित प्रभु अपने साथ उन्हें लेकर आए। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का करोड़ों धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 121 में कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। परमेश्वर महान परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता मैं तेरे आने जाने में तेरी सहायता करूँगा। और सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु से सुरक्षित अपने घर लेकर आए। प्रभु का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद हो। जो भी विश्वास करेगा परमेश्वर से कभी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें एक और समय मिला ताकि हम परमेश्वर के वचन से देख सकें। और आज का जो पैसेज है वो है मार्क चैप्टर 9 वर्स 14 से 29 तक। यहाँ पर एक इंसिडेंट हो रहा है और एक आदमी है जिसका लड़का दुष्टात्मा से ग्रसित है, और वो देखता है यहाँ पर वो निकल के आता है, और प्रभु से जब प्रभु आते हैं तो प्रभु से वो बातचीत करता है कि आपके चेले मेरे बेटे के अंदर से दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि चेलों का अविश्वास। फिर हम आगे चलते हैं तो वही आदमी जिसका बेटा दुष्टात्मा से ग्रसित था, वो प्रभु से बोलता है यदि प्रभु आप मेरे ऊपर तरस खाइए और मेरे बेटे को चंगाई दे दीजिए, और यदि आप कर सकते हैं तो प्रभु कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सो वो इस 24वें पद में इस प्रकार से बोलता है, हे प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं मगर मेरे अविश्वास का उपाय करिए। सो हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे हैं कि दोनों, चाहे हम डिसाइपल्स को देखें, चाहे हम उस व्यक्ति को देखें जिसके बेटे के अंदर दुष्टात्मा है, दोनों को हम देखते हैं तो दोनों के अंदर एक अविश्वास दिखाई देता है। और परमेश्वर का वचन इब्रानी उसका 11 और 6 पद में बोलता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कई बार हमारे जीवन में एक इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अविश्वास आता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर हम कभी भी प्रभु से नहीं कहते कि हमारे अविश्वास का उपाय कर। मगर आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि जब हमारे जीवन में अविश्वास आता है
तो हमें उसको प्रभु के पास जाना चाहिए। जैसे ये व्यक्ति गया प्रभु के पास और उसने कहा कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करिए। सो आज का विषय जो टॉपिक है डेवलपिंग योर फेथ, हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। हम अपने विश्वास को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो बहुत जल्दी में देखेंगे हम तीन स्टेप है जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। पहला, रीड द वर्ड, हमें परमेश्वर के वचन को नियमित तौर से डेली हमें पढ़ना है। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसका 10 अध्याय 17 पद में विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। सो अगर हमें अपने जीवन में हमारे जीवन में अविश्वास है और हमें अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना है, अगर डेवलप करना है, विकसित करना है, तो पहला जो स्टेप है कि हमें रीड द वर्ड, हमें रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। केवल बुक्स के द्वारा नहीं हम परमेश्वर को जान सकते। केवल जो हम इन दिनों में वीडियो देख रहे हैं या हम फेसबुक पे दे रहे हैं, उससे हम प्रभु को नहीं जान सकते और हमारा विश्वास उससे ज्यादा अधिक नहीं बढ़ सकता। मगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। सो पहला स्टेप हमारे जीवन में होना चाहिए रीड द वर्ड। और दूसरा अगर हम देखें हीड द वर्ड, यानी कि इसका मतलब याकूब उसका 1 अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है वचन को सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। तो कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मगर हम उस पर चलने के लिए क्या चूक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। जो परमेश्वर हमें सुनाता है, जो हम वचन से सुनते हैं, तो हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए, हमें रिप्लाई देना है, हमें उसके ऊपर चलना है और सावधान रहना है। अगर हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है तो जो हम सुनते हैं हमें उसके ऊपर चलना भी पड़ेगा। तीसरा जो अंतिम हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं वो है टेस्ट द वर्ड। हमें परमेश्वर के वचन को परखना है। अगर मलाकी उसके 3 अध्याय उसके 10वें पद में लिखे कि सारे दशमांश भंडार में ले जाओ, यानी कि परमेश्वर कहता है कि परख कर देखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन में अपरंपार आशीष को देता हूं। सो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, जिस वचन को हम सावधानी से चलते हैं, उसके ऊपर हमें परखना भी है, उसके ऊपर दावा करना है, क्लेम करना है कि प्रभु आपने अपने वचन में बोला है कि मांगो तो मैं दिया जाएगा। यदि हम भजन संहिता 34 उसके 5वें पद को पढ़ेंगे, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उनके मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। तो परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है। यदि हम अविश्वास में हैं इन दिनों में, तो हमें जरूरत है कि प्रभु से पुकारने की जरूरत है कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। और परमेश्वर हमें उपाय बताएगा 3, रीड द वर्ड, हमें परमेश्वर के वचन को रोज मनन करना है। हीड द वर्ड, हमें सावधान रहना है, केवल सुनने वाला नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाला भी होना चाहिए। टेस्ट द वर्ड, हमें परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस पर दावा करना है, परखना है, और इस प्रकार हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने जिसके दुष्टात्मा ग्रसित उसका बेटा था और उसने परमेश्वर ने उसके उपाय किया और उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उस दुष्टात्मा से उसको क्या चंगाई दी। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अविश्वास के लिए प्रभु के पास जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रभु के पास जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद दें परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी। जो भी वचन हमने सुना है प्रभु जी, विश्वास के ऊपर जो कुछ भी आज हमने सुना है प्रभु जी, हम उसे अपने जीवनों में लागू करने वाले हों प्रभु। हर एक इंसान, हर एक जन जो वचन को सुन रहा है प्रभु, वो हर एक जन प्रभु जिस विश्वास के वचन को अपने दिल में उतारने वाला हो प्रभु, और इसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़े प्रभु जी। इस कठिन समय में जब महामारी चल रही है प्रभु जी, तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास बढ़े प्रभु जी। आप में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस कठिन समय में प्रभु जी जो भी लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, या वो लोग प्रभु जी जो इस बीमारी से लोग लड़ने में मदद कर रहे हैं दूसरों की, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको संभालिए प्रभु जी। इस दिन प्रभु जी आज हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में सब कुछ, हर एक बात आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। एक एक जन जो इस मैसेज को देख रहा है प्रभु जी, आपके हाथों में उसको सौंपते हैं प्रभु जी, उसको आशीषित कीजिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।